children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, light. Learning objectives, reflection of light, types of reflection, plane mirror, multiple reflections by plane mirrors, refraction of light, dispersion of light, human eye, defect of vision. We are able to see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us with our eyes. But we cannot see these things in the dark. It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. When a part of light falling on an object bounces back and reaches our eyes, it makes an image of the object in our eyes. Thus, we are able to see an object. So, light makes things around us visible. There are two types of objects. Luminous objects are those which emit their own light. We do not need another object to see such objects. Luminous objects can be natural, such as the sun, stars, firefly, or glowworm, etc., and man-made, such as bulb, candle, torch, etc. Non-luminous objects are those which do not have their own light. They can only be seen in the presence of light coming from a luminous object. These can also be natural, such as mountains, rivers, plains, animals, etc., and man-made, such as buildings, vehicles, roads, etc. देखिए, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को ना देखते हैं, राइट? अब इन जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं, क्या आप उन्हें डार्क में देख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. इसका मतलब है कि सिर्फ आइज से ही हम कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देखते. किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. जब वो लाइट हमारी आइज में एंटर करती है तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं, राइट? अब आपके दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक तो ल्यूमिनस, जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं. हमें मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आपका सन है, स्टार्स है, फायरफ्लाई है, ग्लोवम एक्सेट्रा. और कुछ आपके मैन मेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम टॉर्च की बात करें, कैंडल या बल्ब की बात करें. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपके वो होते हैं जो खुद की जिनकी ओन लाइट नहीं होती, जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते, बट उनको देखा जा सकता है जब आपके पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा. तो ये आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, राइट? मैनमेड भी हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स है या फिर रोड्स. Reflection of light. When light is incident on an object, the following three things may happen. A part of light may pass through the object. Transmission of light. A part of light may be absorbed by it, absorption of light, and a part of light may be reflected by it, reflection of light. अब देखिए, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है तो तीन चीज़ें होती है. सबसे पहले तो कुछ लाइट का जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाता है, राइट? कुछ पार्ट जो है लाइट का वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. The bouncing back of the light rays as they fall on a smooth, shiny and polished surface is called reflection. This is the reason when we stand in front of a window pane, we sometimes see our own image in the glass along with the objects which we see through it. This is because some light is being reflected by the glass pane and some light is passing through it. Some light is also being absorbed by the glass. The amount of light reflected depends on the nature of the reflecting surface. An opaque and highly polished surface such as stainless steel surface, mirror, etc. are all reflecting surfaces. देखिए, जो लाइट रेस का बाउंसिंग बैक होता है, मतलब जैसे वो किसी स्मूथ या शाइनी या पॉलिश सरफेस पे पड़ते हैं तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन. आपने कभी देखा है, अगर आप ना विंडो पेन पे खड़े हैं, आपको बाहर की चीज़ें भी नज़र आएंगी, आप जो देखना चाह रहे हैं, और आपको उस विंडो पेन में आपकी इमेज भी नज़र आएगी. ऐसा क्यों होता है कि देखिए, क्योंकि कुछ जो लाइट है उस ग्लास पेन जो है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ लाइट उसमें से पास हो जाएगी, जबकि कुछ लाइट को जो ग्लास है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. अब कितना अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर कैसा है. आपका जैसे जो ओपेक या जो हाईली पॉलिश सरफेस होते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील सरफेस या मिरर, ये सारे ही आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं. सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स two rays, incident ray and reflected ray. The incident ray is a light ray in medium falling on the shiny surface of a reflecting body. After falling on the surface, this ray returns into the same medium. This ray is called the reflected ray. An imaginary line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence of the light ray is called the normal. The angle of incidence is the angle formed between the incident ray and the normal, and the angle of reflection is the angle formed between the normal and the reflected ray.
देखिए सपोज आपका ये सरफेस है, लाइक आपका एक रे आती है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, राइट, इंसिडेंट रे। अब ये सरफेस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगा, राइट, तो जो आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब आपके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, राइट। अब आपके दो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Laws of reflection. The relation between the incident ray, the reflected ray and the normal is given as the laws of reflection. The laws of reflection are as follows. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. The angle of incidence and the angle of reflection are always equal. देखिए दो लॉज हैं आपके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो आपके सेम होंगे, और जो आपकी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे या जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे आपके सेम प्लेन पे होते हैं। Do you know silver metal is the best reflector of light? That is why a thin layer of silver is deposited on the side of materials like plain glass sheets to make mirrors. Let us perform some activities to verify these laws of reflection. आपका जो सिल्वर मेटल होता है ये आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, इसीलिए एक पतली सी जो लेयर होती है सिल्वर की उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है आपके जैसे कि ग्लास शीट्स हैं, प्लेन ग्लास शीट्स हैं इसके ऊपर, या जब मिरर्स बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर सिल्वर की डिपॉजिट कर दी जाती है। एक्टिविटी 1, टू वेरीफाई दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। टेक अ चार्ट पेपर एंड फिक्स इट ऑन अ प्लेन सरफेस लाइक अ टेबल. Place a plain mirror perpendicular to it. Keep the setup in a dark room. Project the paper a little out of the table and cut the paper a bit from the edge. Take the torchlight covered with black paper with a hole. Observe the path of the incident ray and the reflected ray. Now fold the paper in different planes from where it was cut and try to get the reflected ray in those planes. You will find that the reflected ray only appears in the same plane as that of the incident ray. It shows that incident ray, normal ray and reflected ray lie on the same plane. आपको एक चार्ट पेपर लेना है और किसी प्लेन सरफेस पे उसको फिक्स करना है, जैसे कि आपका टेबल है। अब आपको एक प्लेन मिरर इसके परपेंडिकुलर प्लेस करना है और ये सेटअप जो है डार्क रूम में होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, जो पेपर है उसको थोड़ा सा आप टेबल से बाहर प्रोजेक्ट करेंगे एंड पेपर के एजेस हैं उसको थोड़ा सा कट करेंगे, राइट। इसके बाद आपको टॉर्च लेनी है जो कवर्ड होगी ब्लैक पेपर से और जिसमें एक छोटा सा होल होगा। अब आपने जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इसका पाथ जो है ऑब्जर्व करना है। अब आप पेपर को फोल्ड करेंगे डिफरेंट प्लेन से जहां से इसको कट किया गया था एंड नाउ यू विल ट्राई टू गेट द रिफ्लेक्टेड रे इन दोस प्लेन्स। आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम प्लेन में ही अपीयर हो रही है जैसे जो कि आपके इंसिडेंट रे में थी। तो ये क्या शो करता है, ये एक्टिविटी शो करती है दैट दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। Activity 2. To verify that angle of incidence is equal to the angle of reflection. Place a white sheet of paper on a drawing board and fix it using drawing pins. देखिए आपको क्या करना है, एक white sheet of paper लेना है और उसको किसी drawing board पे और फिक्स करना है उसको drawing clips के साथ। आपको एक straight line draw करनी है XY on the paper and set the plane mirror along with line and perpendicular to the sheet of the paper. एक straight line आपने draw की, दिस इज द स्ट्रेट लाइन XY पेपर पे एंड आपको मिरर को इस तरह से सेट करना है। दिस इज योर मिरर, राइट। नाउ ड्रॉ लाइन AO एट एन एंगल say 30 degree to the mirror such that O lies on the line XY. Put two pins P1 and P2 on this line as far apart as possible. अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी AO इस तरह से कि जो 30 डिग्री का हो। आपका O जो है आपका कहाँ आना चाहिए, XY पे। सो देखिए दिस इज A एंड O। अब ये देखिए 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, राइट। लुक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल एंड पुट टू पिन्स P3 and P4 so that P3 and P4 the images of P1 and P2 lie on the same straight line. अब आपको क्या करना, देखिए आपको यहाँ पे पिन्स लगानी है, राइट। अब आपको क्या करना है, पिन्स P3 एंड P4, दिस इज अ P4, राइट। ये दूसरे साइड पे आपको लगानी है। इस तरह के जो आपका P3 एंड P4 है और जो आपका जो इमेजेस है P1 एंड P2 का वो सेम स्ट्रेट लाइन में हो।
the pins, mark their positions and draw the reflected ray. Measure the angle of reflection. आपको सारे pins को remove करना है, उनकी positions को mark करना है and reflected ray draw करनी है और angles को आपने measure करना है. Repeat the experiment for different angles such as 40 degree, 50 degree and 60 degree. Record your observations in each case. अब आपको angles change करने, पहले हमने 30 का लिया, 40, 50, 60 भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी observation को आप record करेंगे. From the above experiment, we can conclude that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, right? And the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incident all lie in the same plane. Types of reflection. The amount of reflection of light depends on the nature of the reflecting surface of the body. Based on the nature of the surface, reflection can be classified into two types, namely regular reflection and irregular reflection. Regular reflection. When a beam of light, collection of parallel rays, falls on a smooth surface, it gets reflected. After reflection, the reflected rays will be parallel to each other. Here, the angle of incidence and the angle of reflection of each ray will be equal. Hence, the law of reflection is obeyed in this case and thus a clear image is formed. This reflection is called regular reflection. The reflection of light by a mirror is an example of regular reflection. अब आपके दो तरह के रिफ्लेक्शन है. सबसे पहले अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट है यानी कि आपकी जो पैरेलल रेज, इस देखिए आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं इस तरह से, दीज आर द इंसिडेंट रेज, ओके. एंड इसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो देखिए एक रेगुलर आपका पैटर्न बन रहा है, राइट. तो ये आपकी कैसे होता है, ये आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. और ये परफेक्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, जो आपका मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इन द केस ऑफ ए बॉडी हैविंग अ रफ और इरेगुलर सरफेस, each region of the surface is inclined at different angles. When light falls on such a surface, the light rays are reflected at different angles. In this case, the angle of incidence and the angle of reflection of each ray are not equal. Hence, the law of reflection is not obeyed in this case, and thus the image is not clear. Such a reflection is called irregular reflection or diffuse reflection. Example, reflection of light from a wall. अब देखिए irregular में क्या होता है कि आप जैसे कि कोई भी रफ या इरेगुलर सरफेस है, राइट. तो अब देखिए इसमें जो आपकी रेज जो आ रही हैं जैसे कि डिफरेंट एंगल से आ रहे हैं, तो जो वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो क्या होंगी आपकी डिफरेंट एंगल्स पे होंगी. डिफरेंट एंगल्स पे होंगी तो फिर क्या होगा, देखिए वो आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना उसे नहीं ओबे कर पाएंगी, राइट. क्योंकि देखिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आपका जो रिफ्लेक्शन है वो तो इक्वल होगा ही नहीं, है ना. तो इसे बोलते हैं हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. एग्जाम्पल इसका क्या है, reflection of light from a wall. Plane mirror. We use mirrors in our daily life for various purposes. The mirror is an optical device with a polished surface that reflects the light falling on it. A typical mirror is a glass sheet coated with aluminium or silver or one of its sides to produce an image. Mirrors have a plane or curved surface. The shape of a mirror determines the type of image it forms. When an object is placed in front of a plane mirror, a copy of the object appears in the mirror, which is called its image. Plane mirrors form the perfect image of an object, whereas curved mirrors produce images that are either enlarged or diminished. मिरर्स हम सभी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, है ना. तो जो टिपिकल मिरर होता है वो आपका एक ग्लास शीट होता है कोटेड विद एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर उसकी एक साइड से, जिससे कि आपकी इमेज बनती है. तो मिरर्स का क्या होता है, प्लेन या कर्व्ड सरफेस होता है. जो शेप होता है मिरर का वो डिटरमिन करता है कि किस तरह की इमेज उस पर बनेगी. जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं प्लेन मिरर के फ्रंट में तो उसकी कॉपी बनती है, राइट. जैसे कि अगर हम प्लेन मिरर में हम देखते हैं तो हमारी इमेज उस पर नज़र आती है एज इट इज़. तो प्लेन मिरर जो होते हैं वो परफेक्ट इमेज बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, जबकि जो कर्व मिरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमेजेस या तो उसमें एनलार्ज होती है यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या फिर डिमिनिश यानी बहुत छोटी होती है. Characteristics of a plane mirror. The image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. At the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. Virtual, so it cannot be obtained on a screen. Laterally inverted, which means
द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट। तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के। सबसे पहले इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, एंड सेम साइज की होती है जो ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है। सेम डिस्टेंस पे होगी बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वर्चुअल होती हैं। वर्चुअल का मतलब होता है जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लेन मिरर पे अपनी इमेज देखते हैं, क्या आप उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। तो दैट इज वाई द इमेज इज वर्चुअल। इसके अलावा लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपका लेफ्ट नजर आता है, अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो आपको राइट नजर आएगा प्लेन मिरर पे। एक्टिविटी 3, टू शो लेटरल इन्वर्जन in a plane mirror. Stand in front of a mirror. Raise your left hand in front of the mirror. What happens to the image on the mirror? The image will show that its right hand is in raised position. This is because the images formed in a mirror are with left-right inversion. Left-right inversion or lateral inversion is a phenomenon in which the left side of an object appears right and the right side of the object appears left. This is the reason why the word ambulance is written as an inverted manner or an ambulance van. This is because the driver of the vehicle in front of the ambulance can read it as ambulance in its rear view mirror due to left-right inversion and can immediately give way to the ambulance. लेटरल इन्वर्जन का मतलब है, देखिए अगर आप जैसे प्लेन मिरर में, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी इमेज देखेंगे, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको लगेगा मिरर में आपको नजर आएगा आपका राइट हैंड। अगर आप राइट रेज करते हैं तो आपका नजर आएगा आपका लेफ्ट। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी तरह से आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में हमेशा एम्बुलेंस किस तरह से लिखा होता है, वो इन्वर्टेड मैनर में लिखा होता है, ताकि जो आपका कोई भी व्हीकल में जो ड्राइवर है वो एम्बुलेंस रीड कर सके, राइट, अपने रियर व्यू मिरर में, और फिर एम्बुलेंस को साइड दे सके। एक्टिविटी 4, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. Let us take a lighted candle and place it in front of a mirror. You will notice that the candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. देखिए आपको क्या करना है कि लाइटेड कैंडल लेना है, मिरर के फ्रंट में रखना है। तो आप देखेंगे कैंडल जो आपको मिरर के बिहाइंड नजर आ रही है, एक्चुअल में क्या है वो कैंडल की इमेज है जो मिरर पे बनी है। The image of candle formed in the mirror is at the same distance as between the candle and the mirror. Now move the candle backwards. You will notice that the distance of the image from the object has also increased. Similarly, if the candle is moved closer to the mirror, the distance between the image and the mirror will also decrease. In each case, the image is upright and its flame appears on top of the candles as in the object. This shows that the image thus formed is erect. Now place a vertical screen behind the mirror and try to get the image on it. You will find that no image is formed on the screen. This shows that the image formed by a plane mirror is erect, virtual, of the same size as the object and is at the same distance behind the mirror as the candle is in front of it. अब आपको क्या करना है, देखिए जो कैंडल की जो इमेज बनी है वो सेम डिस्टेंस पे बनी है जितना कि वो आपके मिरर से पीछे। अब आप कैंडल को बैकवर्ड मूव करेंगे तो आप देखेंगे जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर कैंडल जो आपकी वो क्लोजर हो जाएगी मिरर के तो डिस्टेंस जो बिटवीन इमेज एंड द मिरर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में आपकी इमेज अपराइट होती है, फ्लेम अपीयर्स होती है टॉप में। ओके, एंड इस क्या शो होता है कि जो इमेज बनी है वो आपकी इरेक्ट है। अब आपको क्या करना है, एक वर्टिकल स्क्रीन को आप प्लेस कर देंगे मिरर के बिहाइंड और उस इमेज को वहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या इमेज वहाँ पे बनेगी? ऑफ कोर्स नॉट, कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि जो इमेज है वो आपकी है वर्चुअल, which cannot be obtained on a screen, right? Multiple reflections by plane mirrors. Whenever light coming from an object suffers more than one reflection, it leads to the formation of multiple reflection. Have you ever observed how a barber holds a small mirror behind your head to make you see the image of your haircut or hairstyle in the mirror in front of you? How many images do you think are being formed in this case? You will find that we can get more than one image of an object by using a combination of mirrors. In such cases, the image formed by one mirror acts as an object for another mirror and so on. This is how the phenomenon of multiple reflection works. Light reflected by the object reaches a mirror, which is then reflected to another mirror and so on, thereby forming multiple images. देखिए जब कभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, तो उसमें एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो इसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप बार्बर शॉप में जाते हैं तो हेयर कट आप कराते हैं तो आपके बालों के पीछे वो एक
मिरर आपके रखते हैं जिससे कि आपको क्या नज़र आता है, अपना हेयर कट नज़र या हेयर स्टाइल आपको नज़र आता है फ्रंट पे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम एक टाइम पे मतलब बहुत सारे इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो दिस फिनोमिनन इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है आपका, हम जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स को यूज़ कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो इमेज बना रहा है एक मिरर, वो दूसरे के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड देन सो ऑन। तो इस तरह से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिनन है वो वर्क करता है आपका। एक्टिविटी 5, to show multiple reflection by a plane mirror. Take two plane mirrors and keep them perpendicular to each other. Place an object between them. You can see the images of the object. How many images do you see in the mirrors? You can see 3 images. How is it possible to have 3 images with 2 mirrors? Change the angle between the mirrors to change the number of images formed by the same 2 mirrors only. If you keep both the mirrors parallel to each other, the number of images will be infinite. This type of reflections can be seen in showrooms and saloons. देखिए आपको क्या करना है, 2 प्लेन मिरर्स रखने हैं, लेने हैं और उनको परपेंडिकुलर रखना है एक दूसरे के। तो आप देखेंगे, आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे उनके बीच में, तो आप देखेंगे आपको 3 इमेजेस नजर आएंगे। बट ऐसे कैसे, जबकि आपके पास तो मिरर जो है वो 2 ही हैं लेकिन इमेजेस 3 नजर आ रही हैं। अब आपको क्या करना है, एंगल चेंज कर देना, ठीक है। अब आप जैसे कि इसके बाद अगर आप मिरर को पैरेलल रखेंगे एक दूसरे की तरफ, तो जो इमेजेस हैं वो आपकी इनफाइनाइट बनेगी। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शंस है आपको शोरूम्स या सलून्स में नजर आती हैं। Reason for multiple reflection. When 2 mirrors are kept together with one of their edges joining, then the angle between the mirrors determines the number of images formed by it. In this case, light ray from an object after striking the mirror gets reflected. This reflected light again strikes the mirror and reflects back, producing multiple images of the object. The number of images formed depends on the angle of inclination of the mirrors. If the angle between the 2 mirrors is a factor of 360 degrees, then the total number of reflections is finite. The number of images that are formed by multiple reflection of light by 2 plane mirrors can be calculated using the formula. Number of images is equals to 360 degree by angle between 2 mirrors minus 1. In the above activity, the mirrors are placed at an angle of 90 degree, so the number of images formed were equal to 360 degree by 90 degree minus 1 is equals to 4 minus 1 is equals to 3. अब देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। इसमें आपको देखिए एक फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ इमेजेस आपको निकालनी है 360, एंड जैसे आपको लास्ट एक्टिविटी में था 90 डिग्री का, राइट, माइनस 1, तो आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि आपकी बनेगी 3 इमेजेस। सपोज अगर एंगल हमने चेंज कर दिया 60 डिग्री का कर दिया, राइट, तो फिर कितना होगा आपका, देखिए 6 माइनस 1 यानी कि 5 इमेजेस बनेगी। तो कितनी इमेजेस बनेंगी वो डिपेंड करता है कि जो आपका एंगल है वो कितने डिग्री का है। यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर, they are used as a looking glass in our homes. They are used by barbers to show the customer the back view of his haircut. They are used in optical instruments like kaleidoscope and periscope. They are used in solar cookers for reflecting the rays of the sun into the interior of a solar cooker to generate heat. They are used in shops and offices to provide false sense of space when the place of work is small. They are used for providing false dimensions and showcase displaying jewelry, wristwatches, etc. प्लेन मिरर के यूजेस आपके घर में होता है, बार्बर शॉप में होता है, आपको पता है। इसके अलावा क्लेडियोस्कोप एंड पेरिस्कोप, ये आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें यूज होता है। सोलर कुकर्स में यूज होता है, और ये क्या करते हैं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड जिससे फिर आपकी हीट जनरेट होती है। शॉप्स एंड ऑफिसेज में यूज होता है एक फॉल्स सेंस ऑफ स्पेस देने के लिए, ओके, जब आपका जो प्लेस ऑफ वर्क है वो छोटा सा हो, राइट। इसके अलावा आपके जैसे फॉल डायमेंशंस प्रोवाइड करना है, जैसे कि आपने देखा होगा शो केसेस होते हैं जिसमें आपकी ज्वेलरी डिस्प्ले होती है या रिस्ट वॉचेस होते हैं, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर्स। अब प्लेन मिरर की जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं उसके एप्लीकेशन देखते हैं। नंबर 1 इज पेरिस्कोप. It is an instrument used for viewing bodies or ships which are over and around another body or a submarine. It is based on the principle of the law of reflection of light. It consists of a long outer case, and inside this case mirrors or prisms are kept at each end inclined at an angle of 45 degree. Light coming from the distant body falls on the mirror at the top end of the periscope and gets reflected vertically downward. This light is reflected again by the second mirror kept at the bottom so as to travel horizontally and reach the eye of the observer. In some complex
periscopes, optic fiber is used instead of mirrors for producing a higher resolution. The distance between the mirrors varies depending on the purpose. देखिए आपका पेरिस्कोप क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जिससे कि हम क्या करते हैं कि कोई बॉडीज या जैसे शिप्स को व्यू करना है, लाइक सबमरीन जो आपके अंडर वाटर होते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है. इसमें आपका एक लंबा सा आउटर केस होता है और इस केस में क्या होता है, मिरर्स या प्रिज्म रखे जाते हैं एक एंड पे, यानी कि जो जैसे कि 45 डिग्री पे आपके इंक्लाइंड है. फिर लाइट जो है वो डिस्टेंट बॉडी से आती है, इस मिरर पे पड़ती है जो टॉप पे है, एंड देन जो एंड होता है पेरिस्कोप का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड. फिर ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होती है फिर से, क्योंकि जो बॉटम में एक और आपका मिरर होता है, और उसके बाद ये कहाँ तक, ऑब्जर्वर की आई तक पहुँचता है. और कई बार क्या होता है कि कुछ आपके जो कॉम्प्लेक्स पेरिस्कोप्स होते हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ मिरर, जिससे कि एक हायर रेजोल्यूशन ऑब्टेन की जा सके. अब जो डिस्टेंस होता है मिरर वो डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है उसका. A periscope is an instrument mostly used by defense forces of a country to keep an eye on the movement of enemies who are not directly in the line of observation. It is used to spy on enemies from tunnels, trenches and underwater. This is also used to detect submarines or other objects at different heights from the view. तो periscope आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इसको जनरली यूज़ करते हैं डिफेंस फोर्सेस के लोग, क्योंकि इनको एनिमीज़ की मूवमेंट पर नज़र रखनी होती है जो इनके डायरेक्टली लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन में नहीं आते हैं, राइट. और जैसे कि टनल से स्पाई करना अपने एनिमीज़ को, ट्रेंचेस या अंडर वाटर, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है. क्लेडियोस्कोप. Have you seen through a kaleidoscope and observed the beautiful and colorful patterns formed in it? Kaleidoscope also uses the principle of multiple reflection of light. This instrument comprises inclined plane mirrors which produce multiple reflection of colored glass pieces and create beautiful patterns. आपका जो क्लेडियोस्कोप है ये भी आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है. इसमें क्या होता है, आपके इंक्लाइन प्लेन मिरर्स होते हैं जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बनाते हैं कलर्ड ग्लास पीसेस के, और उसके बाद एक ब्यूटीफुल पैटर्न आपका बनता है. एक्टिविटी टू मेक अ क्लेडियोस्कोप. टेक 3 rectangular pieces of mirror, join them together in the shape of prism. Cover the prism shape with a cylindrical tube made from thick chart paper. Keep the cylindrical tube longer at both the ends. Take a round sheet of chart paper with a hole in the center. Paste it at one end of the tube. At the other end, fix a circular plate of glass. Put some pieces of colored broken bangles on the glass tube and cover it with a chart paper. Your kaleidoscope is ready. Hold the kaleidoscope in front of a luminous object. You will notice beautiful color patterns. Rotate the kaleidoscope to see the changes in patterns. Shake the kaleidoscope to rearrange the colored pieces to see new patterns. 3 rectangular pieces लेने मिरर के, उनको प्रिज्म की शेप में ज्वाइन करना है. आपका जो ये कवर, जो प्रिज्म शेप आपका बन गया है, उसको आपने कवर करना है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब से जो किसी थिक चार्ट पेपर से बना हो. नाउ अब आपने क्या करना है, सिलेंड्रिकल ट्यूब को आपने रखना है बोथ एंड्स पे लॉन्गर. फिर आपने एक राउंड शीट लेनी है चार्ट पेपर की, एंड जिसके सेंटर में होल होना चाहिए. इसको ट्यूब के एक एंड पे आप पेस्ट कर देंगे, एंड दूसरे एंड पे आप क्या करेंगे, एक सर्कुलर प्लेट ऑफ ग्लास को फिक्स करेंगे. फिर आप क्या करेंगे, जैसे ब्रोकन बैंगल्स होती है, टूटी हुई चूड़ियाँ जो होती हैं कलरफुल ग्लास की होती हैं, आप उसमें रख देंगे एंड उसको चार्ट पेपर से कवर कर देंगे. नाउ क्लेडियोस्कोप इज रेडी. अब क्या करना है, क्लेडियोस्कोप को आपने होल्ड करना है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के फ्रंट में, तो उसमें आपके ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनेंगे. आप जितनी बार क्लेडियोस्कोप को रोटेट करेंगे आपको हर बार पैटर्न चेंज मिलेगा, राइट. आप उसको बहुत सारे ब्यूटीफुल, अब जिस तरह से उसको आप शेक करेंगे तो बहुत सारे कलर्ड ब्यूटीफुल आपको पैटर्न मिलेंगे. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Do all surfaces reflect all the light that falls on them? Why is that we can see through transparent materials? When a light ray falls on a transparent material, it is not reflected completely, but a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and most of the light passes through it. Light cannot travel with the same speed in water or glass as it travels in the air because optically denser medium such as water and glass offer some resistance to the light rays. So light rays traveling from a rarer medium like air into a denser medium like glass or water are deviated from their straight line path. The bending of light above the normal at the point of incident as it passes from one transparent medium to another is called refraction of light. When a light ray travels from the rarer medium into the denser medium, it bends towards the normal, and when it travels from the denser medium to the rarer medium, it bends away from the normal. अब देखिए
क्या सारे ही जो सर्फेसेस हैं क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं? और हमें जैसे कि हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू क्यों नहीं देख सकते? जैसे कि कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू लाइट रे फॉल हो रही है तो वो कम्प्लीटली नहीं रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा, और ज़्यादातर जो लाइट है वो उससे पास हो जाएगी। लाइट जो है सेम स्पीड से नहीं ट्रैवल करती वाटर और ग्लास में जैसा कि वो एयर में करती, क्योंकि आपके जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है जैसे कि वाटर है या जो ग्लास है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं लाइट रेज को। तो जब लाइट ट्रैवल करती है रेयरर मीडियम से, जैसे कि आपका एयर है, तो एयर इज रेयर, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जैसे ग्लास या वाटर में, तो थोड़ा सा डिविएट हो जाती है अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से। आपको पता है लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रैवल करती है, बट इस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा वो डेविएट हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग होती है लाइट की अबाउट द नॉर्मल और या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, जब ये पास होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टू अनदर, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, तो जब लाइट रेज आपकी ट्रैवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में करती है तो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। Real and apparent depth. Objects underwater usually appear raised because of refraction. The water level of the swimming pools appear less than it actually is. A coin capped at the bottom of a bucket full of water appears raised because of refraction. अब देखिए क्या होती है, जो आपके ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर होते हैं वो थोड़े से आपको ना रेज नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे कि आप स्विमिंग पूल को देखेंगे आपको लगेगा कि ज़्यादा गहरा नहीं है, आपको लगेगा तो बिल्कुल इसका जो लेवल है वाटर लेवल तो ये तो बहुत थोड़ा सा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कॉइन आप एक बकेट फुल ऑफ वाटर में रख दीजिए, आपको लगेगा कि वो रेज्ड है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट. Sunlight enters from a rarer space into a denser atmosphere. Due to this, sunlight refracts and the sun appears earlier than the actual sunrise. Similarly, sun is visible to us for some time even after sunset because the light rays from the sun refract and manage to reach the earth. अब देखिए सनलाइट जैसे एंटर करता है रेयरर स्पेस से डेंसर एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है रिफ्रैक्ट हो जाता है एंड हमें सन ऐसा लगता है कि वो अर्लियर आ गया है, बट एक्चुअल सनराइज से हमें ऐसा लगता है कि वो पहले आ गया। इसी तरह से जैसे सनसेट होता है तो हमें जो सन है वो थोड़े टाइम के बाद भी विजिबल नजर आता है, क्योंकि जो लाइट रेज होती है सन से वो रिफ्रैक्ट होती हैं, राइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. Light from the stars crosses several layers of air and space with varying densities. Due to this, the light rays get refracted multiple times and do not reach to us directly. They keep changing their path and stars appear to twinkle. देखिए स्टार्स हैं आपके, अब जब लाइट जो आती है स्टार से वो बहुत सारी एयर की लेयर्स होती है जिनसे वो क्रॉस करते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है कि वेरिंग डेंसिटीज़ भी होती हैं। इसकी वजह से जो लाइट रेज होती है रिफ्लेक्ट होती है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि अपने पाथ को ये चेंज करते रहते हैं और इसीलिए हमें स्टार्स ऐसा लगता है कि दैट दे आर ट्विंकलिंग, बट स्टार्स एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट. Light that appears white is actually made of 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, popularly called Vibgyor in short. When a beam of white light enters a special object, it bends. However, the 7 colors of which it is composed bend at different angles. As a result, the light that comes out at the other end is split into 7 colors. This process of splitting of white light into 7 colors is called dispersion of light. In 1665, Sir Isaac Newton discovered through his experiment with glass prism that white light, say sunlight, is a mixture of 7 colors. He found that if a beam of light is passed through a triangular glass prism, the white light splits to form a band of 7 colors on a white screen. The band of 7 colors obtained on a screen due to the dispersion of white light is known as a spectrum of white light. देखिए लाइट जो हमें नज़र आती है वाइट लाइट एक्चुअली वो बनी होती है आपके 7 कलर्स से। 7 कलर्स आपके कौन से हैं? विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हालांकि जो 7 कलर्स होते हैं ये आपके कंपोज्ड होते हैं, ये मतलब ये डिफरेंट एंगल्स पे आपके बेंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ऐसा नज़र आता है कि जो लाइट है जो दूसरे एंड से आ रही है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है, राइट। तो ये जो स्प्लिटिंग होता है वाइट लाइट का 7 कलर्स में, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि जैसे कि वाइट लाइट है या सनलाइट कह लीजिए इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स।
तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया, तो उन्होंने देखा कि जो वाइट लाइट है ना वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई है उसके वाइटर स्क्रीन पे। तो जो बैंड था 7 कलर्स का जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हुआ था बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। Human eye. The human eye is a very complex structure. Each eyeball is set in a socket, which is the protective cavity in the skull. The eyelids prevent outside particles from entering the eyes. Human eye is almost spherical in shape and it functions like a camera. It gives us the sense to see and recognize things. We know that all objects reflect light. When this reflected light enters our eye, we are able to see the object. But what is our eye made up of and how is the image of the object formed in our eye? Let us first explore about the structure of the eye. देखिए ह्यूमन आई जो है ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हर आई बॉल जो है वो सेट है सॉकेट में जो कि प्रोटेक्टिव आपकी कैविटी है स्कल में। आईलिड्स जो है आपके कोई भी आउटसाइड जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एंटर करने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ह्यूमन आई जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है शेप में और इसका फंक्शन जैसे कैमरा का फंक्शन होता है उसी के जैसा है। अब देखिए तो सबसे पहले हम एक आई के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसपेरेंट एंड इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बेंड एंड एंटर द आई। Iris. Behind the cornea is a circular structure called iris in which pupil is located. The iris gives color to our eyes. Iris also regulates the amount of light entering the eye by expanding and contracting. In this way, it also controls the size of the pupil. देखिए कॉर्निया की बात हम करें, कॉर्निया जो है ये आपका फ्रंट पार्ट है आई का जो ट्रांसपेरेंट है, राइट। कॉर्निया क्या करता है, ये हेल्प करता है इन फोकसिंग द लाइट जो आपकी ऑब्जेक्ट से आ रही है टू बेंड एंड एंटर द आई। आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आपका आइरिस एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो आइरिस है जिसमें आपका प्यूपिल लोकेटेड होता है। तो आइरिस जो है वो आइज को कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कितना लाइट जो है आई में एंटर करेगी उसको रेगुलेट करता है बाय कंट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग। तो इस तरह से ये प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। प्यूपिल, the iris has a small opening called pupil. In case of bright light, the pupil is contracted by iris so the extra light does not damage the inside of eye. In case of dark light, the pupil is expanded by iris so that more light can enter our eyes and we can see the objects clearly. आइरिस में छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं हम प्यूपिल। अगर ब्राइट लाइट है तो जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आइरिस, जिससे कि जो एक्स्ट्रा लाइट है वो आई में ना पड़े और आई का जो इनसाइट है वो डैमेज ना हो। और डार्क जब होता है, अंधेरा होता है, तो वो प्यूपिल जो है एक्सपेंड हो जाता है बाय आइरिस, जिससे कि ज़्यादा जो लाइट है वो हमारी आइज तक एंटर करे और हम ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली देख पाए। Eye lens. Behind the pupil is a convex lens that focuses the light rays to form the image on retina. The convex lens in our eyes bends light entering the eye to converge to a point at the back of eye. अब eye lens जो है आपके pupil के behind है। ये आपका convex lens है जो light rays को focus करता है जिससे कि retina पे image बनती है। Retina. It is a thin membrane at the back of the eyeball. It behaves like a screen on which the image is formed. It sends signals to the brain also. Retina पे क्या है, ये स्क्रीन की तरह बिहेव करता है क्योंकि यहाँ पे बनती है इमेज और ये सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को भी। Aqueous humor. The space between the cornea and the lens is filled with the fluid called aqueous humor. Vitreous humor. The space between the lens and the retina is filled with the transparent fluid called vitreous humor. देखिए जो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस है वो आपका फिल्ड एक फ्लूइड से जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर, एंड आपका विट्रस ह्यूमर भी आपका एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि फिल्ड है आपका लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस में। ऑप्टिक नर्व्स, दीज आर स्पेशल नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन सो दैट द ब्रेन कैन perceive and recognize the image formed on retina. The optic nerve has two types of cells, cones and rods. The cones are sensitive to bright light. The rods are sensitive to dim light. The organisms which have more cones than rods can see better during day. The organisms which have more rods than cones can see better at night. The cones also distinguish the color of the object. आपके ऑप्टिक नर्व जो एक स्पेशल नर्व्स होते हैं जो मैसेज कैरी करते हैं रेटिना से ब्रेन तक, जिससे कि जो ब्रेन है वो परसीव कर सके एंड रिकग्नाइज कर सके इमेज को जो रेटिना पे बनती है। अब ऑप्टिक नर्व में दो तरह के सेल्स होते हैं, कॉन्स एंड रॉड्स। कॉन्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड जो रॉड्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रिमेंबर दैट।
तो जिन ऑर्गेनिजम्स के ज़्यादा कोन्स होते हैं देन रॉड्स वो बेटर देख सकते हैं डे टाइम में, एंड जिन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा रॉड्स होती हैं कंपैरेटिवली कोन्स वो बेटर देख सकते हैं नाइट में. Ciliary muscles. These are the muscles that hold the eye lens in position and also change its focal length so as to focus the image of retina. Sclera. It is a white part of the eye that is visible to us. It is filled with watery fluid. Ciliary muscles आपके muscles होते हैं जो eye lens को hold करते हैं उसकी position पे, and इसके अलावा focal length को भी change कर सकते हैं. Sclera आपका जो white part होता है eye का जो कि visible होता है हमें, that is a sclera, and it is filled with watery fluid. Blind spot. It is a point on retina from where optic nerves emerge. Rods and cones are absent in this region and hence it does not detect light and image is not visible at this point. Retina के behind जहाँ पे आपका जो optic nerves emerge होते हैं, आपकी rods and cones absent होते हैं इस region में, and अगर cones और rods absent हैं तो इसका मतलब वो light को detect नहीं कर पाएंगे, and यहाँ पे image इस point पे visible नहीं होती. Activity 7. To demonstrate the existence of blind spot in our eyes. On a white sheet of paper, draw a cross and a black dot about 6 to 8 centimeters apart. Hold the paper in front of your eyes. Close your left eye and look continuously at the cross. Move the sheet closer to your eyes while still looking at the cross. Observe what happens. Now close your eye and look at the dot continuously while moving the sheet closer. What happens to the cross? In the first case, dot mark disappears at a sustained distance from the eye. This is the point where light rays converge at the blind spot on the retina. In the second case, the cross disappears in the similar way. Light is detected by light-sensitive cells, that is rods and cones in our eyes. Regions of eye that do not have these cells will not form any image. आपको एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए एक डॉट लगाएंगे, एक क्रॉस लगाएंगे, एंड इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए लगभग 6 to 8 सेंटीमीटर. अब आपको पेपर को होल्ड करना है अपने आइज के फ्रंट में इस तरह से, लेफ्ट आई को क्लोज करना है, कंटिन्यूअसली आपको क्रॉस पे देखना है. फिर शीट को आप अपनी आइज के पास लेके आएंगे और आपको क्रॉस पे ही देखते रहना है. तो आप देखिए क्या ऑब्जर्व करेंगे. अब आपको क्या करना है, राइट आई को क्लोज करना है, अब आपको डॉट पे देखना है कंटिन्यूअसली और शीट को क्लोजर लेके आना है. तो पहले केस में क्या था कि जो डॉट मार्क है वो डिसअपियर हो जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज होती हैं ब्लाइंड स्पॉट पे ऑन द रेटिना. सेकेंड केस में क्या होगा कि जो क्रॉस है वो डिसअपियर हो जाएगा सिमिलर वे में. तो लाइट जो है, लाइट कौन डिटेक्ट करता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी रॉड्स एंड कॉन्स. तो रीजन्स ऑफ आई जहाँ पे आपकी ये सेल्स नहीं होते हैं वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी. वर्किंग ऑफ द आई. The light rays from an object fall on the cornea and enters the eyeball through the pupil. From the pupil, the light rays falls on the eye lens. अब देखिए जो light rays है किसी object से पड़ती है cornea पे and eyeball में enter करती है through the pupil. Pupil से जो light rays हैं वो eye lens पे पड़ते हैं. The light lens is convex and rays converge onto the retina. A real and inverted image of the object is formed on retina. The rods and cones of retina detect light and send optical signals to brain via the optic nerve. The nerves, while carrying signals to the brain, invert the image once more. Hence, the final image of the object formed in the brain is erect. अब देखिए जो आई लेंस आपका कॉन्वेक्स है वो रेस को कन्वर्स करेगा ऑन टू द रेटिना. फिर आपकी एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की रेटिना पे. तो जो आपके रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं रेटिना के वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं एंड देन ऑप्टिकल सिग्नल्स को सेंड करते हैं टू ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व. फिर जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब इन सिग्नल्स को कैरी करती हैं ब्रेन से, इमेज को इन्वर्ट करती है एक और बार, और जो फाइनल इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो ब्रेन में जो बनती है वो होती है इरेक्ट. नियर पॉइंट. As discussed earlier, the human eye has the ability to adjust its focus to see nearby as well as faraway objects. This ability of human eye is called power of accommodation. The power of accommodation is greatest in case of a child and decreases with advancing age. The minimum object distance at which a clear vision is obtained by accommodation is called the near point of the eye. For a normal eye, the near point is at a distance of about 25 centimeters from the eye. देखिए जैसे आपको पहले भी बताया गया था कि ह्यूमन आई की एबिलिटी होती है कि वो एडजस्ट कर सकते इसके फोकस को, ठीक है, जैसे कि कोई पास की चीज़ें या दूर की चीज़ें.
तो इस एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है चाइल्ड के केस में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका, जिसपे आपका क्लियर विजन आपका ऑब्टेन होता है बाय अकोमोडेटिंग, वो आपका नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है। तो किसी भी नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो होता है आपका अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। Eye defects and their correction. There are several defects of the eye resulting from a wrong lifestyle or eating habits. These cause problems with visibility of the object. देखिए आजकल जो है आईज में बहुत सारे आपके डिफेक्ट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल है या ईटिंग हैबिट्स हैं, तो इनकी वजह से फिर क्या हो जाता है, विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहला डिफेक्ट देखते हैं मायोपिया। When the eyes cannot focus on far off objects but can focus on nearby objects clearly, the defect is referred to as myopia or short-sightedness. In this defect, eye lens becomes thick and cannot see far off objects clearly. The image of these objects is focused in front of the retina. This defect is corrected by using spectacles and made of concave lens that helps in diverging the light rays so that image is formed on the retina. देखिए इसमें क्या होता है कि आईज जो है वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस नहीं कर पाती बट नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाती है क्लियरली। तो डिफेक्ट को बोला जाता है मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आई लेंस होते हैं वो थिक हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से जो दूर की चीज़ें हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, ये फोकस्ड होती है रेटिना के फ्रंट पे। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स जो कि आपके बने होते हैं कनकेव लेंस से। वो क्या करते हैं, वो डाइवर्स करने में हेल्प करते हैं लाइट रेज को, जिससे कि जो इमेज है वो आपकी रेटिना पे बनेगी। हाइपोमेट्रोपिया, when the eyes cannot focus on nearby objects but can focus on far off objects clearly, the defect is referred to as hypermetropia or long-sightedness. In this defect, eye lens becomes thin and cannot see nearby objects clearly. The image of the object is focused behind the retina. This defect is corrected by using spectacles of convex lens that helps in converging light rays so that image is formed on the retina. अब हाइपोमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपको दूर की चीज़ें तो क्लियर नजर आएंगी बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगी, पास की चीज़ें होंगी, वो क्लियरली नजर नहीं आएंगी। तो इसे हम कहते हैं हाइपोमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो आई लेंस है वो थिन हो जाते हैं, इसीलिए वो पास की चीज़ों को नहीं देख पाते क्लियरली। और आपकी जो इसमें देखिए इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए स्पेक्टिकल्स का यूज़ किया जाता है जो आपके होते हैं बने कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, लाइट रेज को कन्वर्स करते हैं जिससे कि जो इमेज है रेटिना पे बनती है। Cataract. In old age, the eye lens of some people becomes foggy. As a result, they are not able to see the objects clearly. A dull and foggy image of the object is formed on the retina. This defect is corrected by a minor surgery in which the foggy lens is replaced by a fresh lens. देखिए ओल्ड एज में क्या होता है कि जो आई लेंस होते हैं कुछ लोगों की वो फॉगी हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, एक डल और फॉगी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की रेटिना पे। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है, एक माइनर सी सर्जरी होती है जिसमें फॉगी लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी फ्रेश लेंस के साथ। एस्टिग्मेटिज्म. In this disorder, the eye lens is not able to focus light rays at a single focal point. Instead, multiple focal points occur. Hence, it results in a blurred or distorted vision. It occurs mainly due to an irregularly shaped cornea. It can be corrected by using cylindrical lenses. इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो आई लेंस होती है वो लाइट रेज को फोकस नहीं कर पाती है प्रॉपरली, मतलब किसी भी सिंगल फोकल पॉइंट पे। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनते हैं, तो इसकी वजह से एक ब्लर्ड इमेज बनती है या डिस्टॉर्टेड विजन हो जाता है इसकी वजह से। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर जो कॉर्निया है ना, अगर वो इरेगुलरली शेप्ड है तो इसको करेक्ट किया जा सकता है बाय सिलिंड्रिकल लेंसेज। Visual impairment. Sometimes the objects are not clearly visible. दोबारा बोलते हैं एक सेकेंड ना। Visible impairment. Sometimes the objects are not clearly visible either completely or partially. This disability of the eye is called visual impairment, and such a person is called visually challenged. This may even lead to complete blindness in some people. This condition may result due to an injury, an eye disease, accident, or may even be present by both. The visually impaired person can read and write using the Braille method. It is a method developed by Louis Braille, a French educator and inventor, in 1824, who himself was visually challenged.
देखिए कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं कंप्लीटली या फिर पार्शली, जो डिसेबिलिटी होती है आई की, इसे बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, और ऐसे लोगों को कहा जाता है विजुअली चैलेंज्ड। तो इसमें आपका हो सकता है तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है बहुत सारे लोगों में। तो ये कंडीशन हो सकती है कोई इंजरी की वजह से, कोई आई डिसीज़ है, या बाय बर्थ भी हो सकता है, राइट। लेकिन क्या जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, यानी जो लोग देख नहीं सकते, क्या वो पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, ब्रेल मेथड से। ये लुई ब्रेल एक फ्रेंच एडुकेटर और इन्वेंटर थे, और ये खुद भी विजुअली चैलेंज थे। इन्होंने डेवलप किया था विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। सम पीपल आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, दे आर कॉल्ड ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। A person can be blind by birth or due to an accident. Most of the visually impaired persons use a white stick to feel their surrounding when they walk. There are special schools called blind schools for such children. These children learn to read and write in a special script called Braille. Braille language was developed by Louis Braille. He himself was blind but had a strong desire to read and write. So he developed a script using a combination of raised dots. It is written on a thick paper using raised dots. Children in blind schools are encouraged to develop various other skills like singing, playing musical instruments, candle making, wood carving, etc. तो ये कुछ लोग प्रॉपरली नहीं देख पाते, इन्हें हम ब्लाइंड या फिर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कहते हैं। तो ये तो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि ब्लाइंड लोग जो है वाइट स्टिक का यूज़ करते हैं अपनी सराउंडिंग को फील करने के लिए जब वो चलते हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं, लाइक ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं ऐसे बच्चों के लिए, जहाँ पे लोग बच्चे जो हैं पढ़ना और लिखना सीखते हैं ब्रेल के थ्रू, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू। ब्रेल लैंग्वेज जो है लुई ब्रेली ने डेवलप की थी, वो खुद भी अंधे थे, बट वो खुद उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो पढ़ें और लिखें, तो इसीलिए उन्होंने एक स्क्रिप्ट डेवलप की जिसमें रेज डॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इसमें देखिए जैसे कि ए के लिए एक डॉट है, बी के लिए इस तरह से, सी है तो इस तरह से 2 डॉट्स सी के लिए, एंड डी है तो 1, 2 and 3, राइट। तो जो चिल्ड्रन आपके ब्लाइंड स्कूल्स में होते हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि वो डिफरेंट दूसरे स्किल्स को डेवलप करें, जैसे कि सिंगिंग है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है, कैंडल मेकिंग एट्सेट्रा। आई केयर, eyes are a very important sense organ. They are also the most sensitive sense organ. We should take proper care of our eyes. Some important points related to eye care are, तो चलिए कुछ टिप्स देखते हैं जिसमें हम अपनी आई को क्या कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। Do not rub your eyes. Gently massage if you feel irritation or wash your eyes. Do not work in too less or too much light. Both the situation cause headache and watering of eyes. Wash your eyes frequently during the day. सबसे पहले अपने आईज को रब नहीं करना है, जेंटली मसाज करना है अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, और आप अपनी आईज को वॉश भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट में और बहुत कम लाइट में काम नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है और आंखों में से आपके पानी आ सकता है। अपनी आईज को फ्रीक्वेंटली आपको वॉश करते रहना है। नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। इफ यू हैव continuous headache or reddening of eyes, visit an eye specialist. Always use spectacles if needed as advised by the eye specialist. Take vitamin A rich diet. Vitamin A is very important for our eyes. कभी भी सन पे को आपने डायरेक्टली नहीं देखना है। अगर आपका कंटिन्यूसली हेडेक हो रहा है या आईज आपकी रेड हो रही है तो आई स्पेशलिस्ट को विजिट करना है। हमेशा आप स्पेक्स का यूज़ करें इफ़ नीडेड, जैसे कि आपको अगर आई स्पेशलिस्ट ने एडवाइस किया है तो आपको हमेशा पहनने चाहिए। विटामिन ए रिच डाइट लें, क्योंकि विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग आउटकम्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज्ड, राइट, रिमेंबर दैट। When two mirrors are placed facing each other at some angle, they form multiple of reflections. Kaleidoscope and periscope work on multiple reflection of light. White light is made of 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Human eye has a convex lens. Remember that this line is very important. In human eye, images formed on the retina. The various defects of vision are myopia, hypermetropia, visual impairedness, cataract, astigmatism, etc. We should take proper care of our eyes. देखिए बहुत सारे आपके जो डिफेक्ट्स हैं विजन के, लाइक ये जो हमने पढ़े हैं, और हमें अपनी आइज़ का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।